اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ محترم بھائیو، ابھی میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک سورت سورہ یونس ہے، اس کی 3 آیتیں چھوٹی چھوٹی آیتیں پڑھ کر سنایا ہوں۔ آیت نمبر 60 پر 2، 60 پر 3، 60 پر 4۔ اس کا میں ترجمہ بھی آپ کو سناؤں گا، اس کے بعد اس کا مطلب بھی آپ کو بتاؤں گا۔ انشاءاللہ آج کا بیان میں اور آج کا درس بڑا اہم بھی ہے اور ضروری باتیں بھی انشاءاللہ اس کے اندر آپ کو معلوم ہوں گی۔ اور ہمارے بھولے بھالے مسلمان چند لوگ ان کے جو غلط فہمیاں ہیں، مس انڈرسٹینڈنگ جسے بولتے ہیں، غلط فہمیاں، وہ بھی ان آیتوں کے اندر جو معنی مطلب ہے وہ بتانے کے بعد، سننے کے بعد آسانی سے وہ غلط فہمی بھی دور ہو جائے گی کہ اللہ قرآن میں کیا بتایا ہے، اسے کیا سمجھتے ہیں لوگ، حقیقت کیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو آج میں بتاؤں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو سورے ہیں ان کے ناموں میں اللہ تعالیٰ چند پیغمبروں کے ناموں سے سورے رکھا ہے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے نام سے ایک سورہ ابراہیم ہے، ہود علیہ السلام کے نام سے ایک سورہ ہود ہے، اور یونس علیہ السلام کے نام سے یہ سورہ جس میں آیت میں آپ کو پڑھ کر سنایا۔ پیغمبروں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی ایک سورہ ہے، سورہ محمد۔ پیغمبروں کے علاوہ بھی جو لوگ پیغمبر نہیں ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے نام سے بھی سورے ہیں، جیسا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ بی بی مریم کے نام سے ایک سورہ ہے، سورہ مریم۔ اور حضرت لقمان ایک بڑے نیک آدمی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کے ایک نیک آدمی تھے، ایمان والے تھے، تو ان کے نام سے بھی ایک سورہ ہے، اور انہوں اپنے بیٹے کو کیا نصیحتیں کرے ہیں وہ ساری باتیں اللہ اس میں بتایا ہے۔ تو ایسا پیغمبروں کے علاوہ، مطلب جو لوگ پیغمبر نہیں ہیں، ان کے نام سے بھی سورہ اللہ تعالیٰ رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چند جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کے نام سے بھی سورے ہیں، سورے کے نام ہے۔ پہلا سورہ جو ہے سورہ بقرہ ہے، بقرہ کے معنی گائے کا بیان وہ سورہ کے اندر ہے، تو اس لیے اس کا نام سورہ بقرہ ہے، وہ سورہ جس کے اندر گائے کا بیان ہے۔ یہ ایک سورہ ہے سورہ نمل کا معنی چمٹی کے نام سے بھی ایک سورہ ہے۔ وہ سورہ کے اندر وہ چمٹی کیسا بات کرتی ہے، وہ سارے چمٹیاں کو، وہ قصہ کیا ہے سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا، تو وہ بھی اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے، تو اس کے نام سے وہ سورہ کا نام سورہ نمل ہے۔ اور ایک سورہ ہے مکڑی کے نام سے، عنکبوت کے دن سے، عربی میں عنکبوت کے تو مکڑی جو جالے بناتی ہے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس کی ایک مثال دے کر کے بتایا ہے، کیسا مکڑی کا گھر جو بناتی ہے بالکل کمزور، نہ اس کے اندر مٹی ہے، نہ اس کے اندر پتھر ہیں، نہ اس کے اندر لکڑیاں ہیں، کوئی چیز نہیں ہے، نہ لوہا ہے، نہ سیمنٹ ہے، نہ کمی ہے، کنکر کچھ نہیں ہے، بالو کچھ نہیں، وہ اپنے ایک لعاب کا تو اس کے پیٹ کے اندر سے جو بنتا ہے، اندر ایک چیز جو بنتی ہے مادہ، اس کی طرف سے وہ جالا بنا دیتی ہے، گھر بنا لیتی ہے، اور گھر میں چلتی پھرتی رہتی ہے۔ تو اللہ اس کی بھی مثال دیا ہے، ان اَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، یعنی گھروں میں سب سے کمزور گھر، بے طاقت والا، کیا بھی اس کی حیثیت نہیں، خالی پھوکے تو بھی چل جاتا، زور سے پھوکے تو، انگلی سے ایسا کرے تو، کاڑی سے ایسا کرے تو بھی وہ گھر پورا بھی 1 سیکنڈ میں ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی مثال دیا ہے۔
और वो सूर्य भी हैं। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में बहुत सारी जगह बहुत सारी मिसालें दिया है। क्यों? इंसान को समझने के लिए दुनिया की चीजों के मिसालान दिया है अल्लाह ताला, दुनिया की चीजों के मिसालान दिया है। एक सूरह में गधे की मिसाल दिया अल्लाह ताला, वो आदमी जिसके पास किताबें हैं उन्हें पढ़ता नहीं समझता नहीं, तो उसकी मिसाल उस गधे की है जिसके पीठ के ऊपर किताबें डाल को बंधा ले। अब वो क्या पढ़ता है, उन्हें समझ सकता नहीं। तो उस तरीके से चंद लोग हैं, चंद लोगों की मिसाल अल्लाह कुत्ते से दिया है। कल्ब, अरबी में कल्ब कहते हैं, उसकी मिसाल भी अल्लाह, अगर तुम्हें उसके ऊपर क्या तो वजन डाले तो भी उन्हें हाँपता है, नहीं डाले तो भी हाँपता है, हा करके जाता रहता कुत्ता। तो अल्लाह ताला ये सब मिसालें क्यों दिया है? समझाने के लिए कि एक बात को आसानी से इंसान को समझ में आने के लिए, उसके आंखों के सामने जो चीजें हैं दुनिया में, जो कामा होते हैं, जो जानवर हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, तो इनकी मिसाल, उनकी मिसाल देकर, कभी खेती की मिसाल दिया अल्लाह ताला कुरान के अंदर। खेती का मतलब ज़राअत करते हैं, उसमें से अनाज उगता है, कभी उगता है कभी नहीं होता। अब उसके अंदर एक दाना डालो तो कई दाने उसमें लगते हैं। यानी तुम एक छोटी नेकी करो तो उसका सवाब अल्लाह बहुत ज्यादा देता है, वो नेकी के हिसाब से पकड़कर। तो ये सारे मिसाल भी अल्लाह ताला कुरान के अंदर बताया है। तो आज जो सूरह की जो आयतें पढ़ा हूं मैं, उसकी बात आपके सामने पेश करता हूं। क्या फरमाया? अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। याद रखो, अरबी में अला के माने सुनो, याद रखो। हमें बोलते ना हमारे बात में, भाई सुनो जी ये बात अच्छा सुनो, तो गौर से सुनो, ये बात को याद रखो। तो अल्लाह ताला फरमाता है अला, ऐ लोगो गौर से सुनो और इस बात को याद रखो। क्या बात को याद रखना? इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक अल्लाह के दोस्तों पर कोई अंदेशा नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। ला खौफुन, खौफ की बात नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। और उनको गमगीन होने की भी जरूरत नहीं, अफसोस करने की भी जरूरत नहीं। किसके लिए? अल्लाह के दोस्तों को, अल्लाह के दोस्तों को। अब अरबी में वली कहते हैं। हमारे उर्दू और अरबी के बातें मिलते जुलते हैं चंद बातें, तो उससे क्या होता है, अरबी के लफ्ज को उर्दू में वैसा समझ जाते हैं। वो लफ्ज का माना समझे बगैर वो लफ्ज को ऐसे ही लेकर दूसरी जगह इस्तेमाल करते हैं। अरबी में वली का एक माना क्या है? देखभाल करने वाला, देखभाल करने वाला, निगहबान तो पूरा देखने वाला और उसकी जरूरतें पूरे करने वाला। तो अल्लाह ताला कुरान ने फरमाया अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ईमान वालों का वली है। वली का मतलब क्या? देखभाल करने वाला, उनकी हिफाजत करने वाला। अब वली का एक माना क्या आता है? दोस्त का आता है। अब वो माना भी अल्लाह यहाँ बताया कि अल्लाह के दोस्तों को, यहाँ वली का माना अल्लाह के वली का, तो अल्लाह को देखभाल करने वाले नहीं, उसका मतलब अल्लाह को क्या भी तकलीफ पहुंचे इसका, अल्लाह की जरूरत पूरे करने वाले वो नहीं इसका माना। जहां मैं पहले बताया अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू, आयतुल कुर्सी के बाद जो आयत है उसके अंदर जो बात अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ईमान वालों की देखभाल करता है, निगहबानी करता है, जरूरतें पूरी करता है, अपनी हिफाजत में रखता है वहां। लेकिन यहाँ वली का माना क्या आता है? दोस्त। दोस्त का मतलब, दोस्त क्या करता है? दोस्त की बात मानता है और उसके तरीके में चलता है, उसके बताए हुए रास्ते में चलता है। तो अब यहाँ अल्लाह के दोस्त का माना क्या है? अल्लाह बोले जैसा सुनने वाले, अल्लाह बोले जैसा करने वाले। ऐसे आदमी को डरने की जरूरत नहीं। आदमी कब डरता है? मामूल से एक काम करता है, इसमें फायदा होता है कि नुकसान होता है कि मालूम नहीं, तो उसमें डरता रहता है। एक मैं काम कर रहा हूं, इसमें फायदा होता है नुकसान होता है मालूम नहीं, तो डरता है आदमी। और अफसोस करता है, गमगीन कब होता है? जब उसका नतीजा ना निकला। तो इन्हें काम मेहनत करा है लेकिन नतीजा आया नहीं। एक आदमी
ज़राअत कराया है, धान लगाया है, टमाटर लगाया है, या और कुछ भी बैगन लगाया, तरकारी लगाया है, तो वो काम करने के बाद डरता रहता है, इसमें नतीजा आता है नहीं मुझे, ज़राअत होती है में फायदा आता है नहीं। अगर नहीं आया तो बाद में अफसोस कर लेता है, गमगीन हो जाता है, क्या भाई मैं तवाखा पड़ा, इतनी मेहनत करा, वो पूरा चल गया ना मेहनत पूरी, और अफसोस कर लेता है, गमगीन हो जाता है, फिक्र में पड़ जाता है। तो अल्लाह ताला ये दोनों बातों को इस आयत के अंदर दबा करके कहता है कि जो अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह बोले जैसा सुनने वाले हैं, अल्लाह ताला फरमाया नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखो, रोजा रखते हैं, ज़कात दो, ज़कात देते हैं, कुर्बानी दो, कुर्बानी करते हैं, यानी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलने वालों को डरने की जरूरत नहीं। क्यों? इससे हमना को फायदा होता है कि नेकी करो, डरने की जरूरत नहीं, दुनिया में भी डरने की जरूरत नहीं और आखिरत में भी डरने की जरूरत नहीं है, और अफसोस करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? नुकसान हो गया तो अफसोस होता है। ये तुम्हारे जो आमाल हैं, नेक आमाल, ये नुकसान करने वाले आमाल नहीं हैं। तुम्हारे कामाल जो भी तुम्हें करते हैं, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, सदका, खैरात, उम्रा, जो भी करते हैं नेक आमाल, सदका जारिया, सब कुछ ये बेकार होने वाले नहीं है। इसके पीछे तुम्हें गम खाने की जरूरत नहीं है। और अल्लाह के जो नेक बंदे हैं, जो अल्लाह के दोस्त, उन्होंने कौन उन्होंने अल्लाह के नेक बंदे, वो भी अल्लाह ताला फरमाया, क्या फरमाया? अल्लज़ीना आमनु व कानू यत्तक़ून, ये वो लोग हैं जो ईमान लाए और बुराइयों से परहेज करते हैं, बचते हैं, अल्लाह से डरते हैं। कौन? अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त। कौन उन्होंने? अल्लाह के दोस्त ऐसे लोग हैं, यानी अल्लाह को चाहने वाले, अल्लाह के बात पर अमल करने वाले कैसे लोग हैं? जो ईमान लाए हैं। ईमान लाना पहली शर्त क्या है? अल्लाह का दोस्त बनने के लिए ईमान लाओ। दूसरी शर्त क्या है? वो आदमी अल्लाह का डर उसके दिल के अंदर रखकर बुरे कामों से बचता रहना, जब उन्हें अल्लाह का दोस्त होता है, अल्लाह का वली। अब ये लफ्ज को हमारे अरबी से उर्दू में ले लेकर हमारे मुसलमान भाइयां जिनको मालूमात नहीं है, कम इल्म है, भोले भाले हैं, इन्हें क्या समझ गए हैं? वली का मतलब ऐसा आदमी जो दीनदार हो, नेक आदमी हो, और उससे खरखे आदत कहती है अरबी में, उसका माना उर्दू में क्या? ऐसे कामा करना जो मामूल इंसान कर सकना नहीं, उन्होंने ऐसे कामा करके दिखाना। जैसा अल्लाह ताला मौजिज़े दिया था किसे? पैगंबरों को। पैगंबरा ऐसे चंद कामा करके दिखाए हैं अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की मदद से और अल्लाह के हुक्म से ऐसे कामा करके दिखाए हैं जो मामूल इंसान नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने करे ही। अल्लाह वो ताकत देखो कराया उनके जरिए। जैसा मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में लाठी थी, लकड़ी नीचे डालते ही साफ हो जाता था, ये मामूल इंसानों कौन भी कर सकते नहीं। तो अल्लाह ताला कराया पैगंबरों के जरिए, तो इसे मौजिजा कहते हैं। और उनके अलावा जो दूसरे लोग हैं अल्लाह के नेक बंदे, उन्होंने भी कभी कभी अल्लाह उनके जरिए ऐसा कराता है। कैसा? एक आदमी को पेट में दर्द है ज्यादा जोर से, हजरत मुझे पेट में दुखता है, क्या मात्रा रखे तो कम होता ना है, दवा करे तो भी, क्या तो जरा आयत पढ़ को फूको हजरत। तो उन्हें क्या करती हैं? क्या कि एक आयत पढ़ को फूकती, चंद आयता पढ़ को फूकती। तो अल्लाह ताला क्या करता है? अल्लाह के फजल से और वो आयतों के असर से अल्लाह उसके दर्द को दूर कर लाता है। तो ये आदमी क्या समझता है? अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के वली, मेरे ऊपर मेरी तकलीफ को दूर करने के लिए आयता पढ़ को फूके ही, नेक बंदे। इनके अंदर एक अलग ताकत है, अलग पावर है इनके अंदर। ऐसा सोच करके एक आदमी को इन्हें उसके माइंड में फिक्स कर लेते हैं, अल्लाह के वली उसके हिसाब से। अब असल बात क्या है? अल्लाह के सबसे बड़े वलियां का तो कौन? दोस्तां। फर्स्ट नंबर पर कौन आते हैं? अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के रसूल। जितने भी पैगंबर हैं उन्होंने सारे के सारे ये दो पॉइंटा उनके अंदर थे। क्या दो पॉइंटा? अल्लाह पर ईमान रखते थे और बुरे कामों से बचते थे, अल्लाह का डर उनके दिलों के अंदर था। हर जमाने में जो पैगंबर रहते हैं उन्होंने सबसे अल्लाह के सबसे बड़े नेक बंदे उस जमाने के, उनसे बड़ा नेक बंदा कौन भी रहता नहीं उनके उम्मत में, तो उन्होंने बड़े नेक बंदे। तो इस तरीके से अल्लाह ताला तकरीबन 1,24,000 पैगंबरान को ये दुनिया में भेजा है। तो अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के वली का तो सबसे नेक बंदे, अल्लाह के दोस्तां कौन? पैगंबर। अब
माने के हिसाब से, माना मतलब के हिसाब से उन्हों, क्यों? अल्लाह के हुक्मों पर चलने से उन्हों। उसके बाद दूसरा दर्जा किसका आता है? सहाबा का आता है। हर जमाने में कोसे पैगंबर पर ईमान लाए और उनके साथ थे, उन्होंने बोले जैसा चले, जिंदगी गुजारे, उन्होंने सभी वो पैगंबर के सहाबा उस जमाने के। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो लोग हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आपको साथ दिए, आपके साथ में थे, चलते फिरते देखते आपको, आपके हुक्म पर चलते थे, उन्होंने सहाबा ही। तो दूसरे रकम के वली, वली का मतलब दोस्त, अल्लाह के दोस्त था, उन्होंने। अब उसके बाद ताबईन, तबे ताब, इस तरीके से वो सिलसिला क़यामत तक रहता है। ये सिलसिला कंटिन्यू होता है। कब तक? क़यामत तक। कैसा क़यामत तक कंटिन्यू होता है? जो भी आदमी अल्लाह की जात पर ईमान रखता है, अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, अल्लाह से डर कर बुरे कामों से बचता है। जैसा बुरे कामों में तो हम जानते हैं, शराब पीना, झूठ बोलना, जिना करना, चोरी करना, एक कमाल चुराना, नाहक सताना, किसी को गाली देना, नाहक मारना, ये सारे चीजें क्या है? बुरे काम जो ही, ये बुरे कामों से बचना। तो अल्लाह के नेक बंदे वो लोग हैं जो बुरे कामों से बचते ही, करते नहीं बुरे काम। क्यों? अल्लाह का डर उनके दिल के अंदर, नहीं भाई ये काम मैं करता नहीं। क्यों? अल्लाह मना करे है, ये काम करा तो मैं, अल्लाह मना करे सो काम करा तो अल्लाह मुझे सजा देता है, मैं सजा पाता नहीं भाई, मैं अल्लाह की सजा पाने की ताकत मेरे अंदर नहीं है, तो उसके वास्ते मैं ये काम करता नहीं, अल्लाह मना करा मैं करता नहीं। ये ख्याल दिल में रखने को जिंदगी गुजारने वाले क़यामत तक भी आएंगे। वो कौन ही? सिर्फ अल्लाह जानता है, अल्लाह के सिवा हमें कौन भी जानते नहीं, उन्होंने कौन ही। तो उन्होंने सब भी अल्लाह के नेक बंदे ही। अगर अल्हम्दुलिल्लाह हम सब यहाँ बैठे हैं, हमें भी अगर अल्लाह पर भरोसा रखेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह है, हम सारे लोगों को अल्लाह पर भरोसा है कि अल्लाह है, अल्लाह के पर ईमान है। दूसरी बात, बुरे कामों से बचना, इंशाअल्लाह हमें भी कोशिश करेंगे। शैतान इंसान होने के हिस्से हमारे से भी कुछ बुरे काम कराने की कोशिश करता है, लेकिन उन बुरे कामों से बच करके हमें अल्लाह के तरीके में, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारेंगे तो हमें अल्लाह के दोस्त बन सकते हैं, अल्लाह के चाहने वाले। तो क़यामत तक कौन भी बन सकता है, फलाने आदमी फिक्स नहीं है। पैगंबरां फिक्स ही, सहाबा फिक्स ही, ताबईन फिक्स ही, लेकिन नेक बंदे फिक्स नहीं। हर जमाने में, हर इलाके में हमेशा क़यामत तक नेक बंदे अल्लाह के रहेंगे, ईमान वाले रहेंगे। और जब अल्लाह ताला इस दुनिया को ख़त्म करना चाहेगा तो ईमान वालों को, पूरे आदमियों को मौत दे जाता है, उठा लेता है अल्लाह। उठाने का मतलब क्या? मौत आ जाती है, उन्हें सब मर जाती। एक आदमी भी अल्लाह करके बोलने वाला नहीं रहेगा उस वक्त में। और अल्लाह ताला एक ठंडी हवा भेजता है, एक ठंडी हवा भेजता है, तो वो हवा आकर उन लोगों को लगती है जो ईमान वाले रहते हैं क़यामत से पहले, तो वह हवा लगने के साथ उनका इंतकाल हो जाता है आसानी के साथ। अब जो लोग बाकी रह जाएंगे, एक आदमी भी अल्लाह को मानने वाला नहीं उस वक्त में, ईमान वाला एक भी नहीं रहेगा, पूरे बेईमान लोग रहेंगे। तो उस वक्त अल्लाह ये दुनिया को खत्म कर रहा है। तो इससे क्या मालूम होता है कि ईमान वाले, अल्लाह पर भरोसा रखने वाले क़यामत तक रहेंगे, क़यामत तक रहेंगे, हर इलाके में रहेंगे, हर जमाने में रहेंगे, हर मुल्क में रहेंगे। लेकिन कौन है? अल्लाह जानता है। क्यों? ये दिल का भेद, ये दिल का राज अल्लाह जानता है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानते। लेकिन हमारे सादे सीधे मुसलमान भाईयान जो अनपढ़ा हैं, जिनको पढ़ना लिखना आता नहीं, जिनको कुरान हदीस की बात मालूम नहीं है, उनके अंदर लोग एक बात फैला करके रखे हैं, वलियां का तो फलाने आदमी, अजमेर में ही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उन्होंने एक वली, दिल्ली में ही निजामुद्दीन औलिया, उन्होंने एक वली, फिर बम्बई में ही हाजी मस्तान, क्या उनका नहीं, हाजी मस्तान, हाजी अली साहब, उन्होंने एक वली, नेल्लूर में ही, कश्मीर में ही, नागौर में ही। तो ऐसा चंद गांवों में चंद लोगों के नामा दे करके लोगों में फैला दिए हैं। क्या कहते? इन्हों वलियाम है। हालांकि उन्हों भी हो सकती, हमें उनका इनकार करते नहीं, उन्होंने गलत आदमी बुरे आदमी अगर बोलते नहीं हमें, उन्होंने भी हो सकते हैं, अल्लाह जानता है। लेकिन उन्होंने क्या वास्ते बोल लिए हैं? उनके जरिए से खर्क़े आदत कामा होती। खर्क़े आदत का मतलब गैर मामूली, जैसा हिंदुआ माया मंत्रम करते हैं, तो वैसा उनके जिंदगी में होते थे। और क्या समझते हैं?
उनके मरने के बाद भी वो काम आज उनके खबर के पास होते हैं। ये हमारे भोले भाले मुसलमान भाया समझते हैं। हमारी क्या तो तकलीफ है, परेशानी है, मुसीबत है, चलो उनके खबर के पास जाएंगे, हमें जाकर के वहां जाकर दुआ करेंगे तो उन्होंने हमारी दुआ सुनते हैं, हमारी तकलीफ को दूर करते हैं, तो चलो वहां जाकर के आएंगे। और उनकी क्या समझते हैं, इन्होंने अल्लाह के वली, वली, ये वली उनकी करामत से हमारी तकलीफें दूर हो जाती, मुसीबतें दूर हो जाती, परेशानियां दूर हो जाती और हमारे जरूरतें पूरे होती। ये समझते हैं भोले भाले मुसलमान भाया हमारे। कम इल्म लोग, अनपढ़ लोग, जिनको इल्म नहीं है, उन्हें ये समझते हैं। समझने की वजह क्या, चंद लोग जो थोड़ा बहुत जानते हैं उन्हें ये आयत पढ़ करके बोलते हैं, देखो अल्लाह कुरान में बोला है अल्लाह के वलियां को डरने की जरूरत नहीं है, गम खाने की जरूरत नहीं है। तो अल्लाह के वलियां कौन, उन्होंने खबर में से भी हम लोग को फायदा करती, खबर में से भी फायदा करती। ये मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमी लोगों के अंदर फैला दी। हालांकि इंसान जब तक जिंदा है सामने वाले को नफा भी दे सकता है, नुकसान भी कर सकता है। जब तक जिंदा है, इंसान मर जाने के बाद ना खुद अपना नफा कर सकता है ना अपना नुकसान कर सकता है। इंसान मर गया है, उसकी रूह निकल गई है, मुर्दे को सुला दे हैं, क्या वो मुर्दा उठकर जाके व्यापार करके पैसे कमाता है क्या? नहीं कर सकता। चाहे वो कितना बड़ा आदमी क्यों ना हो, चाहे वो कितना बड़ा नेक आदमी क्यों ना हो, नहीं कर सकता। और अपनी जरूरतें खुद पूरी कर लेते, क्या अपना पानी तो खुद नहीं नहा सकता, अपनी कफन तो खुद पहन नहीं सकता, अपने खबर में जाकर खुद दफन हो सानी उन्हें। कितने बड़े हजरत भी हो, बुजुर्ग भी हो, अमीर साहब भी हो, कितने बड़े पैगंबर भी हो, पैगंबरों को भी जो उनसे कम दर्जे वाले उनके सहाबा, उनके साथियां थे, उन्होंने नहला धुला करके उनको दफन करे। पुराने जमाने से भी पूरे पैगंबरों को भी, सहाबा को भी उनसे कम दर्जे वाले या उनसे उनके बराबर के लोग जो है, उनके इंतकाल होने के बाद उनकी जरूरतें इन्हों पूरे करे ही। क्या जरूरत, नहलाना धुलाना, कफन पहनाना, जनाजे की नमाज पढ़ना, जनाजा लेकर जाना, खबर खोदना और खबर में दफन करना, ये इन सारे काम जो अपनी जरूरत के ही, वो चाहे वो कितना बड़ा इंसान क्यों ना हो, चाहे पैगंबर हो, चाहे वली हो, चाहे सहाबा हो, कोई भी हो, नेक आदमी जो है, उन्होंने खुद अपना काम नहीं कर ले सकते मरने के बाद, ना दूसरों को तकलीफ भी नहीं दे सकते। एक आदमी मर गए हैं, वहां जा करते ही हाथ से मारते नहीं, उन्हें क्या भी लात से मारते नहीं, क्यों? मर गए, उन्होंने इंतकाल हो गए हैं, उन्हें कुछ नहीं कर सकते, ना नुकसान कर सकते हैं ना नफा दे सकते। लेकिन हमारे भाइयां क्या समझते हैं, नहीं उनकी खबर के पास गए तो हमारी जरूरतें पूरी हो जाती, उन्होंने क्या की करती देती। चंद लोग क्या बोलते, नहीं भाई हमें उन्होंने करती को जाते नहीं उनके खबरान के पास, अल्लाह से उन्होंने दुआ करती। क्या समझते हैं बेचारे, उन्होंने अल्लाह से दुआ करती। अब उन्होंने अल्लाह से दुआ करने के लिए हमारी बात मालूम होना ना उनको, हमें क्या इरादे से गए हैं। कोई भी खबर के पास जाने वाला जो हाथ उठा करके ऐसा बैठता है, दुआ करता है, वहां जोर से तो बोलता नहीं। खादर वली, महबूब सुबहानी, अजमेर वाले, दिल्ली वाले जो औलिया जो उन्हें समझते हैं ये मेरी जरूरत पूरी करो, और जोर से बोलता नहीं, कौन सा इंसान भी दिल में उन्हें ऐसा दुआ कर लेता है। उन्हें क्या समझता है, ये दुआ इनको सुनाती है और इन्हों अल्लाह के पास दुआ करो मेरा काम कराती। चंद लोग ऐसा बोलते हैं। बहुत सारे लोग क्या कहते, नहीं भाई वहां जाकर दुआ करे तो उम्मीद हमारी दुआ पूरी करवा दी। ऐसा वलियां के साथ भी है। चंद लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी ऐसा अकीदा रखते हैं, ऐसा ख्याल रखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ करे तो भी उनकी खबर करने जाको वो हमारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबर में से मदद करती हैं, इन्हें भी मदद करती हैं। और उसके लिए जब हमें उनसे बोलते हैं कि भाई इंतकाल हो गई, इंतकाल हो जाने के बाद दफन कर डाले, कैसा सुनती, तो वो एक दूसरी एक आयत है कुरान के अंदर, वो आयत ला करके यहाँ बताकर उसका माना बताती। क्या, जो लोग अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो गए, शहीद हो गए, उन्हें मुर्दा नहीं ही, उन्हें जिंदे ही। अल्लाह कुरान ने फरमाया, वो फिर क्या फरमाया, उन्हें जिंदे ही, कैसा जिंदे ही तुमने मालूम नहीं। ऐसी बात है इन्होंने करते हैं कुछ। अल्लाह क्या कर रहा है उसके साथ वो आयत में ये बात भी बोल रहा है, जो लोग अल्लाह के रास्ते में जंग लड़ते हुए शहीद हो गए हैं उनको मुर्दा कर को मत बोलो, क्यों? उन्होंने जिंदे ही,
अल्लाह के पास, और उनको जो हिस्सा मिलना है वो मिलता है, उनको क्या क्या सवाब मिलना है, क्या आराम मिलना है वो मिलता है। तो ये आयत ला करके यहाँ ज़र अजमा पेश करते हैं। ज़र हजरत बयाना बोलने वाले मस्जिदा में तो उन्होंने वो आयत लाकर पेश करती। वो आयत असल में क्या है, उसका पस मंजर क्या है, पस मंजर मतलब उसका बैकग्राउंड क्या है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जंग लड़ने के लिए जाते थे सहाबा। अब जंग में जाने के बाद दोनों चीज़ों का एहतिमाल है। एहतिमाल तो हो सकता है क्या, हमें उनको मारे जा ना, उन्हें हम लोग को मार सकती। इंसान जहाँ को हमेशा बच को आ जाता है, हमेशा जीत को आता है, कुछ नहीं। कभी कभी जंग में हार भी हो सकती है और इंसान इंतकाल भी हो जाता है, शहीद भी हो जाता है। तो वो जमाने में चंद लोग क्या करते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जिहाद को जाने, जंग में जाने से डराते थे। जी जौनों को मर जाती, जंग में गए तो मर जाती, जौनों को दी, ऐसा बोलते थे। तो अल्लाह ताला क्या करा, इन्होंने हिम्मत को कम पस्त कर डालते हैं। पस्त हिम्मत करना तो कमजोर कर डालना आदमी को, उसकी हिम्मत तोड़ देना, नको बा मैं जाता नहीं, जंग को गया तो मर जाता हूँ। तो अल्लाह फरमाया नहीं, तो तू अगर मेरे रास्ते में जंग को जाकर मर जाता है, जिहाद करके मर जाता है, तो तू मुर्दा नहीं, मेरे पास हमेशा जिंदा हो जाता है, मेरे पास है हमेशा जिंदा हो जाता है। और तुझे जो चीज मैं देना हूं देता हूं। वहां रिस्क का लफ्ज है। रिस्क का माना क्या, तेरा हिस्सा, ये क्या मिलना है कि मैं देता हूं, ये बहुत बड़ा सवाब देता हूं, बहुत ज्यादा सवाब देता हूं, जन्नत में बहुत ऊंचा मर्तबा देता हूं, आखिरत की जिंदगी तेरी बहुत आसानी से गुजर जाती है, तेरा हिसाब किताब आसान हो जाता है। तो इस तरीके से अल्लाह ताला उनको एक तसल्ली के तौर पर बताया। और हमने को क्या बताया, वलाकिन ला तशउरून, लेकिन तुमना को मालूम नहीं उन्होंने कैसा जिंदगी। ये बात समझे बगैर ये आयत ला के पेश करके क्या बोलते हैं, उन्होंने सब अल्लाह के नेक बंदे, उन्होंने सब जिंदे ही, मरे नहीं, उन्होंने खबरा में जिंदे ही। भाई जिंदा हो तो तुम्हें खबर में दफन करी। जिंदा आदमी चलता फिरता है जमीन के ऊपर, खाता पीता सोता बैठता काम धाम करता है जिंदा आदमी। तो जिंदे आदमी को कौन भी खबर में आज तक डालते नहीं, डालना पसंद करती क्या कौन, तो भी न, खुद वो आदमी भी खबर में जाना पसंद करता नहीं। क्यों, आदमी के ऊपर मठी मर जाता है ना, तो उन्हें क्या मरना कौन भी पसंद करता नहीं। और खुद जिंदा रहकर ऊपर मठी जलाने को मर गया तो उन्हें खुदकुशी करे, जैसा जिसे सुसाइड को बोलते हैं। तो ये तो अल्लाह के पास बहुत नापसंदीदा काम है, अल्लाह को पसंद नहीं है सुसाइड कर लेना। और ऐसा आदमी जन्नत को जाता नहीं, जहन्नम को जाता है। तो ये समझने की कमी, समझ की कमी, मिसअंडरस्टैंडिंग बोलते हैं, समझ सकते नहीं। तो उस हिसाब से ये जो आयत है, ये आयत का माना और मतलब ये है कि अल्लाह ताला अल्लाह के नेक बंदियों को, जो अल्लाह के दोस्त हैं, उनको डरने की जरूरत नहीं। कुछ किस बात से डरने की जरूरत नहीं, हमें करते हैं नेक अमाल, इसका बदला मिलता है कि नहीं, कि डरने की जरूरत नहीं। और आखिरत में तुम्हें गम खाने की भी जरूरत नहीं। और इसकी वजह से जरा चीजें छुड़ जाती, दुनिया के गलत मजे, दुनिया के गलत मजे। अब ऐसे मजे से खेल गए ना, और तुम्हें फिक्र खाने की जरूरत नहीं। वो गलत मजे जो है उसे छोड़ो, उनके पीछे मत पड़ो। कैसा आदमी शराब पिया तो उसे खुशी मालूम होती है, नाचता है, उछलता है, खेलता है, कूदता है, कितना उसे मजा आता है, कितनी खुशी उन्हें पाता है। नहीं, वो खुशी नहीं, वैसी खुशी हमना को जरूरत नहीं। तो इस तरीके से जो गलत तरीके के काम ही, उसकी तरफ से इंसान को जो मजा आता है, जो फायदा होता है, वो फायदे की हमना को जरूरत नहीं है। तो उसे दुनिया में फायदा होता है, तो उसे फायदा होगा तो हमें क्या भी गम करने की जरूरत नहीं, अफसोस करने की जरूरत नहीं। वैसा फायदा हमना को जरूरत नहीं। हमें नेक काम करेंगे, नेक काम के बदले में जो फायदा हमना को मिलने वाला है, इंशाअल्लाह हमें उस फायदे से अल्लाह के पास सवाब हासिल करेंगे, उस फायदे को हमें हासिल करेंगे। दुनिया के हिसाब से, दुनिया के गलत कामों से, गलत चीजों से, गलत तरीकों से जो खुशी इंसान को हासिल होती है, वैसे खुशी की भी हमको जरूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद आखिरी जो आयत है उसका तर्जुमा सुनाकर बात खत्म करिए। उसके बाद अल्लाह फरमाता है, लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। जो लोग अल्लाह पर ईमान लाते हैं और नेक अमल करते हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं, तो उनके लिए खुशखबरी सुना दो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह फरमाता है, लहुमुल बुशरा, उनके लिए खुशखबरी सुना दो, गुड न्यूज। खुशखबरी का मतलब क्या, दुनिया की जिंदगी में भी और आखिरत में भी। दुनिया में भी तुमना को खुशखबरी दी जाती है और आखिरत में भी उन लोगों को खुशखबरी दी जाएगी जो अल्लाह पर ईमान लाए और
नेक अमाल किए। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, और अल्लाह की बातों में कुछ फर्क नहीं करता, फर्क होने वाला नहीं है, बदलने वाले नहीं है। अल्लाह की जो बातें हैं वो बदलने वाली नहीं है। अल्लाह जो भी बताता है वो सही है और वो पुख्ता बातें हैं, उन बातों के अंदर कमी बेशी आने वाली नहीं है। ज़ालिक हुवल फौजुल अजीम, और यही बड़ी कामयाबी है, इंसान की दुनियावी कामयाबी और आखिरत की कामयाबी, दोनों कामयाबियां जो बड़ी कामयाबी है इंसान की, वो क्या है कि अल्लाह ताला की तरफ से खुशखबरी देना। अल्लाह ताला खुशखबरी क्या देता है कि मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ करके तुमको जन्नत में भेजूंगा, तो इससे बड़ी खुशखबरी और कुछ नहीं है। तो ये 3 आयता, इसका माना मतलब मैं आपके सामने पेश किया हूँ। इसमें और भी बहुत सारी बातें आ सकती हैं, वो जो बातें मैं आपको बताया कि कौन लोग वलिया ही फलान आदमी इनोच वलिया करके जो फिक्स कर ले बैठे हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है कुरान के हिसाब से। कुरान के हिसाब से क्या है, जिनको इन्हों वलिया मानते हैं, हो सकता है उन्होंने भी अल्लाह के नेक बंदे रहेंगे, हम उनके साथ अच्छा गुमान करेंगे, अल्लाह के नेक बंदे थे, अल्लाह उनको जन्नत अता फरमाए। लेकिन वो लोग जो दुनिया के हिसाब में लोग क्या समझते हैं, दाढ़ी है क्या, टोपी है क्या, जुब्बा है क्या, अल्लाह के नेक बंदे। बहुत सारे लोग जो फकीरा वगैरह हैं, नशे की चीजें इस्तेमाल करते हैं, गांजा पीते हैं, और फिर ना नमाज ना रोजा, और वो उनके कामा करते हैं, और उन क्या समझते हैं, इन्हों भी अल्लाह के वलिया, अल्लाह के नेक बंदे। ऐसे लोगों को भी लोग क्या समझते हैं, वो करतब दिखाते हैं, चाकू इधर से उधर को घुसाना, जबान में चाकू घुसाना और सिर में चाकू उतार लेना। ऐसे जो फकीरान के लोग जैसे लोग जो कामा करते हैं, वैसे खरखे आदत कामा यानी करामतां के जैसा करने वाले को वली समझ जाते हैं। हालांकि दीवाने लोगों के पीछे भी जाते हैं हमारे मुसलमान भाया, दीवाने वली, दीवाने शाह, नंगे अन्याय के पीछे भी जाते हैं मुसलमान। बेइल्मी, एजुकेशन नहीं, नॉलेज नहीं है, तो उसके वास्ते उनके पीछे भी जाते हैं और ऐसे कामा करते हैं। और जाकर उन्होंने खा को दिए तो झूठा खाना, या उन्होंने दुकान में हाथ डाले तो बरकत आ जाना, इस तरह से उनके पास जाना, जैसा हिंदुआ जाते हैं उनके स्वामियों के पास, पुजारियों के पास, या जादूगरां जो ही उनके पास जाके बोलते हैं ना मंत्र गाड़ू, जादू करने वाले, तो उनके पास जाकर जैसा अपने जरूरतें पेश करके उनके पास उसका हल तलाश करते हैं, इलाज करा लेते हैं। तो वैसा हमारे मुसलमान भाई में बहुत सारे लोग जो हैं दीवाने के पीछे, बोला ना नंगे वली, दीवाने वली, और क्या क्या पता नहीं। और बहुत सारे, एक आदमी खुनसा कहते हैं अरबी में से, हिजरा जिसे बोलते हैं ना, तो उन्होंने भी एक वली, उनकी भी एक खबर। अब उन्होंने और एक आदमी, आप किताबें पढ़ेंगे या उनके बातें सुनेंगे तो ताज्जुब हो जाता है। एक आदमी थे, अपने आप को बोलते हैं अल्लाह मेरा मर्द है, मैं अल्लाह की जोरू, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह मेरा मर्द है, मैं अल्लाह की जोरू। उन्होंने भी वली इनके हिसाब से। और एक बार लोग जाकर उनसे पूछे बारिश के लिए दुआ करो हजरत तुम्हें, तो उन्होंने बगड़िया पहन लिए थे, आसमान की तरफ हाथ उठाकर ऐसा बगड़िया बजा को बोले थे, बरसात बरसा तो बरसा, नहीं तो तेरा सुहाग वापस ले ले, तेरा सुहागन शाह, उनका नाम सुहागन शाह, यानी अल्लाह की बीवी में अस्तगफिरुल्लाह, उन्होंने बोले थे सो, इन्हें अल्लाह की बीवी, अल्लाह उनका शौहर। तो इस तरीके के लोग पूरे भी बहुत सारे लोग गुजरे हैं पुराने जमाने में, इस तरीके से लोगों को गुमराह करते हुए, लोगों को गलत रास्ते में लेके जाने वाले। अब उसी के सिलसिले से ये उर्सों का सिलसिला भी शुरू हो गया। मरने के बाद महबूब सुबानी कहीं बगदाद में ही, अब्दुल खादिर जिलानी उनका नाम, उन्होंने कहीं बगदाद में, इराक में ही, इराक से यहाँ कितनी दूर है, तकरीबन 4-5 हज़ार किलोमीटर है, 3-4 हज़ार किलोमीटर यहाँ से। अब लेकिन हमारे हिंदुस्तान में भी महबूब सुबानी की खबर बना लेके बैठे हैं लोग और उनका उर्स करना। अब उर्स में क्या होता है हमें जानते हैं, गाना बजाना, अब वो उनके तारीफा करना, लोग सुनना, और फिर वहाँ बाजार लगता है, लोग बाजार में चीज़ा लेना, ये वो। और आज पिलर में है उर्स, जिस पर 6 तारीख ना आ जाए, लोग गए रहेंगे,
हमारे गांव से भी जाते लोगों को क्या हमें चीज़ा मोलने गए, तेरे यहाँ बैठना देखना चलना फिरना चहल पहल, ये खुशी का माहौल उनको मिलता है। तो ये उर्सा का सिलसिला भी इसी अकीदे से शुरू हुआ और चलता है। क्या अकीदे से चलता है? इनो वली उनके करामता दिखाती, मरने के बाद भी उनके करामता दिखाती, उनकी ताकत से उन्हें करती। ये अकीदा बहुत सारे लोग रख करके ये काम पूरे करते हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें गलत ही और ये सारे बातें गलत ही। असल में उर्स का माना बोलूं मैं आपको, बोले तो आप लोग हंसती ताज्जुब में पड़ती। असल में उर्स का माना शादी, भावुसवानी का उर्स भावुसवानी शादी है। आरस का है तुम्हें किससे शादी करते ही, मर्दानी के एक जनों को शादी कर सकते नहीं। भावुसवानी का उर्स अरबी लफ्ज है अल उर्स, उर्स के माने शादी। शादी कैसा करती, किसकी करती तुम्हें, ये बात का माना भी मालूम है लोगों को। हाँ चलो भाई आज भावुसवानी का उर्स पिलर में करते हैं, वहां जाएंगे। दूसरे गांव में करते हैं, वहां जाएंगे। कड़पे में है, मदनपल्ली में उर्स करते हैं। ये उर्स का माना मालूम है लोगों को। उन्हें क्या समझ गए हैं, वहां एक मेला लगाना, वहां खवाली गाना, मर्दाना खवाल भी आता है, मर्द औरत भी खवालन आती है, उन्हें भी खवाली गाती है रात भर, और उनको पैसे देते हैं गाना बजाना, और वो उनके तारीफा उनके ये सब कहां से आया? ये लफ्ज से, क्या लफ्ज? वली, अल्लाह के वली, अल्लाह के नेक बंदे। उन्होंने क्या किए करती, मरने के बाद भी उनकी ताकत से उन्होंने करते ही। ये बात मैं आपको बोलूं तो सही बात ही है। क्या पाकिस्तान के बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत बड़े आलिम, नंबर 1 आलिम वहां के, तो उन्होंने भी ये बात बोले हैं। हालांकि बड़े अफसोस की बात, क्या बोले हैं, एक नेक बंदा रहता है, उन्हें जिंदगी में लोगों को फायदा पहुंचाता रहता है, मरने के बाद खबर में से दफन करे तो खबर से भी फायदा होता है, अभी ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, अभी ज्यादा हो जाता है। कितने अफसोस की बात है। मरने के बाद तो इंसान क्या भी नहीं कर सकता, खबर में गया तो खत्म, उन्हें बातचीत चलना फिरना उठना बैठना कुछ भी नहीं दे सकता, कुछ भी नहीं ले सकता, क्या भी ना किसी की बात सुन सकता है, ना किसी को जवाब दे सकता है, कोई काम नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के नंबर 1 आलिम, उन्होंने बहुत बड़े आलिम, तुम्हें यूट्यूब में देखना चाहे देख सकते हैं, तकी उस्मानी साहब उनका नाम है, बहुत बड़े आलिम है। लेकिन क्या बोलते हैं, नेक बंदे उनका फैज का तो फायदा मरने के बाद और ज्यादा हो जाता है। ये तो छोटी बात उनको समझ में आती ना। अब वो जैसा ये लोग वलियां के बारे में फिक्स कर लिए हैं, फलाने फलाने गो में फलाने फलाने बोली, तो वैसा उनके दिमाग में भी वो बात उन्हें फिक्स कर लिए हैं। क्या हमारे उस्ताद बोले ही, हमारे उस्ताद बोले ही, मरने के बाद अभी फायदा ज्यादा हो जाता है, मरने के बाद फायदा ज्यादा हो जाता है। बड़े अफसोस की बात। तो बहरहाल आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को नेक तौफीक अता फरमाए, हमारे सारे मुसलमान भाइयों को नेक तौफीक अता फरमाए, और हम तमाम लोगों को कुरान मजीद पढ़ने, सुनने, समझने, याद रखने और उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों के कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे माँ बाप के गुनाहों को माफ़ फरमाए, अल्लाह ताला हमारे बीवी बच्चों के गुनाहों को माफ़ फरमाए, अल्लाह ताला हमारे सारी दुनिया के मुसलमान भाइयों और बहनों के कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए। अल्लाह हमको दीन की सही समझ अता फरमाए, और हमारे आलिमों को अल्लाह ताला दीन की सही समझ अता फरमाए, ताकि वो लोग आवाम को सही बात बताने की कोशिश करें, उनको कोशिश करने की सही बात बताने की कोशिश करने का अल्लाह उनको तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे नेक अमाल को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हमारे सय्यात से दरगुजर फरमाए। हम तमाम लोगों को अल्लाह ताला ईमान की ज़िंदगी और ईमान की मौत अता फरमाए, और अल्लाह ताला जहाँ कहीं भी मुसलमान मजबूर परेशान है, अल्लाह उनकी मजबूरियों को परेशानियों को दूर फरमाए, और अल्लाह ताला मुसलमानों की जान की, माल की, इज़्ज़त की, आबरू की हिफाजत फरमाए, और अल्लाह ताला मुसलमानों को दुनिया और आखिरत में सुरखरुई अता फरमाए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से आबे कौसर नसीब फरमाए, और हशर के मैदान में हम तमाम लोगों को अल्लाह ताला आमाल सीधे हाथ में अता फरमाए, और हमारा हिसाब किताब आसान फरमाए, और पुल सिरात पर हम तमाम लोगों को आसानी से अल्लाह ताला पार फरमाए, गुजरने के अल्लाह हमको सहूलत अता फरमाए, जहन्नम से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, और अल्लाह ताला अपने रहम से, करम से, फजल से
ہم تمام مسلمانوں کو جنت نصیب فرمائے. آمین. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.